सो आई वाज सेइंग दैट या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, डिपेंडिंग ऑन वो रेयरर टू डेंजर आ रहा है कि डेंजर टू रेयरर आ रहा है। अब ये रेयरर डेंजर क्या है थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। वहां पे रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल है, विच इज n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ओके, सो आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक में क्या करना है, आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं और डायग्राम्स के नीचे ये पॉइंट्स लिखने हैं। रिफ्लेक्शन के नीचे यहाँ तक लिखना है आपको, तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कि ये लिखना है, और रिफ्रैक्शन के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। सो दिस इज योर टास्क फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Now, moving on, we have also learned about the reflection of light produced by spherical mirror and refraction of light through prism and curved surface of lenses. The position and nature of the image depends on position of objects and the focal length of the mirror or lens. तो वापस ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है जहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो हमने स्फेरिकल मिरर से भी उसका रिफ्लेक्शन पढ़ा है और लेंस के थ्रू भी उसका रिफ्लेक्शन पड़ा है। फिलहाल वो टॉपिक उधर ही छोड़ देते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है नेचर ऑफ लाइट। तो हमें पता है कि नेचर ऑफ लाइट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि लाइट को हम पार्टिकल भी मानते हैं और लाइट को हम वेव भी मानते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि क्यों ऐसे साइंटिस्ट उसे पार्टिकल भी मानते हैं और वेव भी मानते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। The formation of shadows as well as images by mirrors and lenses has been understood by considering the rectilinear motion of light waves. This fact led R. Descartes to propose a particle nature of light in the year 1636. Newton developed this concept further and proposed that light is made up of particles, that is corpuscles, which are hard, elastic and massless. A source of light emits these corpuscles which travel along straight line in the absence of any external force. When the light corpuscles strike a reflecting surface, they undergo elastic collision and as a result follow the laws of reflection. During refraction, it is the difference in the attractive force between the corpuscles and the particles of the medium that causes a change in the direction of the corpuscles. A denser medium exerts a larger attractive force on light corpuscles to accelerate them along the normal to the boundary. Thus, the Newton's theory predicted that the speed of light in denser medium would be higher than that in the rarer medium. This contradicts the experimental observation. In this theory, light of different color corresponds to corpuscles of different sizes. Newton performed several experiments in optics and could explain the results based on his theory. The study of optical phenomena under the assumption that it travels in a straight line as a ray is called ray optics or geometrical optics, as geometry is used in this study. The law of reflection and refraction and the formation of images that we studied in earlier standard fall under this category. Okay, so in this particular paragraph, which is a very long paragraph, it states that how they are considering light as particles. तो particles के जगह पे उन्हें नाम दिया है corpuscles. Corpuscles जो है वो इलास्टिक होते हैं, हार्ड होते हैं और मासलेस होते हैं। तो इलास्टिक का मतलब ये होता है कि अगर वो कहीं पे रिफ्लेक्शन करेंगे ना तो वहां पे कहीं पे भी एनर्जी लूज नहीं करेंगे। मतलब अगर वो कहीं पे बेसिकली अगर कोई चीज उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो वहां पे वो डैश करके जब वापस दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो जो डैश करने के पहले जो एनर्जी था उसके बाद भी वही एनर्जी रहेगा। इसका मतलब होता है इलास्टिक। ओके, सो बेसिकली ये पैराग्राफ में उन्होंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया है कि न्यूटन ने प्रेडिक्ट किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम वुड बी हायर देन दैट इन द रेयर मीडियम। बट ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो उनकी थियोरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे अलग अलग कलर्स के लाइट, बेसिकली कलर्स
अलग अलग इसीलिए दिखते हैं क्योंकि कॉर्पस्कल्स के शेप जो है वो अलग अलग है। मतलब बड़ा शेप रहेगा तो एक कलर देगा, छोटा शेप रहेगा तो दूसरा कलर देगा। तो ऐसे उन्होंने अपना थियोरी पुट फॉरवर्ड किया। तो ये जो थियोरी है जहाँ पे हम ऑप्टिकल फिनोमिना को ये अजम्पशन में मानते हैं कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसे हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो अपना जो चैप्टर है वो है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी हाउ लाइट इज गोइंग टू ट्रैवल एज अ वेव, नॉट एज अ particle. Okay, so wave nature. So let us see the wave nature. To circumvent the difficulties in corpuscular theory, it was proposed by the Dutch physicist Huygens in the year 1668 that light is a wave. Huygens assumed light to be a wave caused by vibrations of the particle of the medium. As light could also travel in vacuum, he assumed that a hypothetical medium called ether is present everywhere including in vacuum. Note that the ether is not a substance that we come across in chemistry. मतलब ये जो ईथर है वो नहीं है, ये अलग ही एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस मान लिया है कि यहाँ पे होता है। There was however no evidence to prove its existence and thus it was difficult to accept the concept. So, I just explain थोड़ा सा और नॉलेज यहाँ पे दे देता हूँ मैं। तो न्यूटन जो है वो मान बैठा था कि ये जो है वो पार्टिकल है, लाइट जो है वो पार्टिकल है, लेकिन वो कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि उसका स्पीड इन डेंसर मीडियम इज मोर देन द स्पीड इन द मीडियम, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स को ये कर रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। तो इसीलिए जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने माना कि चलो मान लेते कि वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। तो फिर उनको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ी, जैसे कि सबसे पहला चीज जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि लाइट जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल करता है, लेकिन लाइट को तो अगर वो वेव है, कोई भी वेव को एक मटेरियल चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा अजम्पशन माना कि एक हाइपोथेटिकल मटेरियल ले लेते हैं जिसको ईथर बोलेंगे। तो ये हर जगह पे होता है इंक्लूडिंग वैक्यूम। अब ये वैक्यूम क्या है? वैक्यूम मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे एयर नहीं है, तो उसको वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो एयर अगर नहीं है तो मीडियम कहाँ से हुआ? तो यहाँ पे वो फंस गए, यहाँ पे वेव नेचर का थियोरी जो है वो एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो रहा था। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या फिनोमेना था जो सिर्फ वेव नेचर एक्सप्लेन कर पाएगा। लेट्स सी। In the 19th century, certain new phenomena of light, namely interference, diffraction and polarization, were discovered. This could not be explained based on the corpuscular theory and needed wave theory for their explanation. Huygens' theory could not only explain the new phenomena but could also explain the laws of reflection and refraction as well as formation of images by mirrors and lenses. It was then accepted as the correct theory of light. Wave theory showed that if the speed of light waves in denser medium is smaller than that in the rarer medium, then light bends towards normal. Thus, wave nature of light could explain all the visual effects exhibited by light. The branch of optics which uses wave nature of light to explain the nature phenomena is called wave optics. तो अब ये ध्यान से समझ लीजिए, इवन तो वो लोग वैक्यूम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए या प्रूव नहीं कर पाए, कुछ सालों बाद कुछ और थियरीज आ गए, कुछ और फिनोमेना आ गए, जैसे कि इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह वगैरह। तो ये थियरी को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल था, लेकिन जो ह्यूजेन का थियरी था कि ये लाइट जो है वो तो वेव है, इससे ये परफेक्टली मैच हो रहा था। दूसरा ये हो रहा था कि ह्यूजेन का थियरी कि लाइट जो है वो वेव है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाता था। इसीलिए वो टाइम पे सब साइंटिस्ट ने ओवरऑल मान लिया कि यस, ये करेक्ट थियरी है और लाइट जो है वो वेव ही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रूव किया कि जब लाइट वेव जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेंगे तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इससे ये एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव हो रहा था, जो रिजल्ट मिल रहा था, वो इससे मैच कर गया। तो इसीलिए हम
वो टाइम पे साइंटिस्ट ने मान लिया कि ये थियोरी करेक्ट है। और जब